हाय एवरीवन। हम जब भी रेडियो को सुनते हैं और उसके पीछे जो वॉइस होती है वी बिकम वेरी इंक्विजिटिव, राइट? कि ये आवाज़ किसकी है, हु इज़ दिस इंटरेस्टिंग पर्सन। सो टुडे वी हैव विद अस आरजे अनुराधा उपाध्याय, हु इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स इन डिफरेंट क्रिएटिव सेगमेंट्स। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। सो वेलकम मैम टू द न्यू पॉडकास्ट एपिसोड ऑफ ट्रेड स्कूल। सो हियर टुडे विल मेक श्योर कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमसे कनेक्टेड वो आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीख के जाएँ। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो डे टू डे लाइफ होता है, लाइक आई केम टू नो फ्रॉम योर प्रोफाइल कि आप बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस में काम करते हो। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ योर कंप्लीट डेज गोज एंड व्हाट मल्टीपल टास्क यू डू। First of all, thank you so much, Trade School. Yes. Thank you for having me. And day to day life, day to day routine जो है काफ़ी hectic तो रहता ही है because I have lots of things to do. I'm an RJ and voiceover artist. Then comes my production house. Then comes coordinating between various artists and work. So definitely वो रहता है. But हाँ, I make sure कि जो दिन का वक्त है सुबह से लेकर शाम को 7-8 बजे तक या 6 o'clock तक, that time I devote only to my voice over thing and coordination thing. And being RJ जो मुझे shows करने होते हैं, I make sure कि I go for night shows. I opt for night shows basically. So that's how everything manages. So which work you like the most, like you are handling 2 companies also, you are doing this RJ work also. Which one is like, कि आपको बहुत मज़ा आता हो जैसे करके? See, RJ जब आप होते हैं एक कंसोल के सामने बैठे होते हैं तो डेफिनेटली वो मेरा पैशन है, शुरू से रहा है बिकॉज आई हैव बीन हैंडलिंग द स्टेज एंड माइक्स इन स्कूल, राइटिंग एंड एंकरिंग एंड अदर थिंग्स. सो या दैट इज़ माई पैशन विच आई लव द मोस्ट. That I do for myself. You can say the soul work. Yes. And जब बात आती है voice over dubbing की, तो definitely I love the work. That's why I'm doing that. Yes. But the thing is, that is for bread and butter. That is for earning and living. Yeah. So yeah. But definitely you have to love your profession, love your work. Because here I want to mention that I'm a biotechnologist. Basically, I did my master's in biotechnology, then MBA from Symbiosis. But and I was into the job as R&D में research scientist. I was there. This was till 2010. Okay. Later on, I switched professionally into RJing. Okay. So I quit that job, and then where passion takes me, I just went there. So ma'am, like as you told me that you were doing something else, it was like if I say तो पूरा education segment में ही था, which you were planning ahead also, right? So what things that take you or drag you from being from the education background to being such a RJ or some different kind of field? You have to be a creative person at heart. Okay. And secondly, as they say कि अगर आप जो काम कर रहे हैं वही आपका प्यार है तो फिर definitely आप बहुत अच्छे से करेंगे. That saying is true. Definitely. So yeah. अगर हम उतने साल पहले की बात करें when I was doing this college thing, I did my bachelor's in biotechnology, master's in biotechnology. I did lecturership also. Then I was associated with CSR lab also. I did my research there in MTech, Sector 39 चंडीगढ़. So अगर वो सब देखें तो वो एक दौर था जब पेरेंट्स की तरफ से भी ये होता था कि ओके आइदर मेडिकल फील्ड, नॉन मेडिकल फील्ड, टीचर और फैशन डिज़ाइनिंग, few fields were open that time. But अभी जैसे जैसे वक्त आगे निकल रहा है जो अभी की जनरेशन है, they have lots of options with them. And they are creating option. That is the best part. They are creating work from themselves. So ये सब चीज़ें होती हैं. तो definitely वो टाइम पे अगर हम देखें कि what is your secure future taking you towards like medical, non-medical. That per se I took medical and then later on biotechnology. But then जब मेरे सामने opportunity आई, so definitely I gave auditions and so then I became part of All India Radio. So ma'am, here it's like I met your son also, like so he's like he told me his interest, plus you're also supporting him, right? He's also doing dubbing part. So when you told your parents like you want to switch your career from being a studious student to in a creative field, so were they ready or they were accepting you कि हाँ आप इस field में जाना हो?
पहली चीज तो मैंने उनको बताया नहीं जब तक कि मैं सिक्योर नहीं हो गई। यहाँ पर आई वुड लाइक टू एट द पॉइंट, यू शुड ऑलवेज अ प्लान ए एंड प्लान बी for the future or going parallelly with you. So that time when I did this voice over thing and RJing thing, thoda bahut, not to that extent professionally, but that time I was doing lecturership in Chandigarh. So I was already a salaried person जिसको salary मिल रही है, तो my parents were happy. But ये जो था ये मैंने साथ साथ किया. And you didn't told them, right? No, later on. मैंने उनको तब बताया जब मेरा पहला शो लाइव हुआ रेडियो पर. Oh. So that was all training and polishing, वो सब चल रहा था. जिस दिन लाइव होना था, that day I told my parents, my brother, my भाभी कि ये होने वाला है. मेरे फ्रेंड्स को भी तब पता चला. इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते थे कॉलेज में बैचलर लेवल के, उनको भी तभी पता चला. So it was like a surprise package. So I said मेरा शो सुनना. And then they were surprised कि अच्छा आप ये भी करते हो क्या? So वो साथ साथ चल रहा था. And when I came to Mumbai in 2010 and 11 that time. So that time also I joined IPCA Laboratories as a research scientist in R&D, biotech department. So वो मैंने join किया, but somehow I thought कि ये जो 9 to 6 वाला जॉब, देन मंडे टू सैटरडे वाला जॉब, मतलब ठीक है वो एक सिक्योरिटी है आपके लिए, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है काम में. बट स्टिल आई वॉज देयर. साथ साथ मैंने ऑडिशन दिया जॉब के साथ साथ. एंड व्हेन आई वाज वेरी मच क्लियर दैट आई वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, यही मेरी पसंद की फील्ड है, यही मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो देन आई क्विट द जॉब. हालांकि जब मैंने जॉब छोड़ी तब मेरे जो मैनेजर हैं काफ़ी बोले आजकल जॉब नहीं मिलती किसी को और तुम जॉब छोड़ रही हो. मैंने कहा नहीं, वो एक्चुअली मंडे टू सैटरडे की जॉब और इसके साथ मेरा रेडियो नहीं हो पाएगा. सो छोड़ दिया मैंने जॉब. एंड देन आई जस्ट जॉइंड विविध भारती दैट टाइम. एंड देन लेटर ऑन FM Gold Mumbai. Then now I'm in FM Rainbow Mumbai. That's great, ma'am. And you know, when I was just going through your profile, you have taken so many interviews as well, right? So who was the first person, you know, you just started your journey and you took the interview? Yeah, the first person I interviewed, Manish Wadhwa, who actually played Chanakya. Chanakya, okay. Yeah. उस टाइम आई थिंक एपिक चैनल आता था, कुछ आता था, तो उसमें चाणक्य का रोल उन्होंने किया था. एंड आई वाज सो मच अमेज्ड वो देखकर स्क्रीन पर. मतलब वेट रहता था बिकॉज जो पर्सनालिटी है, जो डायलॉग डिलीवरी है, वो देख के कि अरे क्या कैरेक्टर है, क्या इन्होंने प्ले किया है, कितना अच्छा निभाया है स्क्रीन के ऊपर. तो इंटरेस्टिंग सी बात इसके साथ ये है कि जब हम लोग ये देखते थे सीरियल, दैट वाज आई थिंक 2010 के आसपास ही आया था या 9 के आसपास आया था, मुझे याद नहीं है. बट उस टाइम मैं टीवी पे देखती थी और इंतज़ार रहता था. पर ये नहीं पता था कि इन्हीं का इंटरव्यू सबसे पहले मैं करूँगी. मुझे फ़ैन मोमेंट ज़रूर था मेरा कि जाके मुझे मिलना है उनसे. एंड जब मैं रेडियो पे, क्योंकि जाते ही आपको इंटरव्यूज़ वगैरह अलाउड नहीं होते, आप पहले अपने शोज़ करते हो, आप अपनी एक जगह बनाते हो. एंड इफ़ योर पैक्स योर ऑफिसर ही इज़ क्लियर इनफ कि हाँ आप कर सकते हो, देन ही अलाउस. क्योंकि रेडियो पे हर कुछ नहीं जा सकता, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. सो उनसे जब मैंने परमिशन ली कि इनका इंटरव्यू हम लेना चाहते हैं मनीष वाधवा का, तो ही सेड ओके गो अहेड. सो उसके रिलेटेड मैंने उनसे बात किया, कॉन्टैक्ट किया. एंड ही इज़ वेरी नाइस. वो बड़ी जल्दी तैयार हो गई. सेड ओके कम टू द सेट्स. सो वो मैं फर्स्ट टाइम सेट पर गई थी शूटिंग देखने एंड उनसे मिली थी. दैट वाज अ फैन मोमेंट. एंड आई डिडंट रियलाइज़ कि जिनको मैं टीवी पे देख रही हूँ उनका आज मैं इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ. So like that situation, you know, already आप उनको बहुत पसंद करते थे, as a celebrity you admire him. So how was it, like, you know, you were excited or little bit nervous कि ये थोड़ा मैं कुछ अलग काम करने जा रही हूँ? That was my first interview. I was nervous too. I was nervous too. उसके बाद काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए, बट हाँ that was nervous तो थोड़ी थी मैं, and but excitement भी थी. एंड आई हैड ऑल द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड. मतलब 4-5 पेजेस क्वेश्चंस के थे मेरे पास कि ऐसे पूछना है. बिकॉज बाद में तो आपके फ्लो में आ जाता है ना, आप पूछते हैं, बातचीत करते हैं. लेकिन आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं, वो भी अगर सामने किसी अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से आप बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा उनके सामने बैठने के लिए. तो 3-4 पेजेस के थे. एंड उन्होंने जब वो पेजेस देखे, सर कितनी देर लगेगी, मैंने कहा 1 घंटे में हो जाएगा. पहले तो 1 घंटा सुन के उनको लगा 1 घंटा. देन क्योंकि उनको शायद वो आदत थी छोटे छोटे बाइट्स लेने की, उनको लगा वैसे ही हुआ. लेकिन फिर जब मैंने वो
पेजेस उन्होंने देखे, मेरे 4-5 पेजेस प्रिपेयर्ड है, तो ही वाज लाइक कि बट वो होता है कि कभी आप फिर बातचीत शुरू करते हो तो पता नहीं चलता, फ्लो में हो जाता है। एंड मेरे जनरली सारे इंटरव्यूज बहुत लंबे लंबे रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ में ब्लेस्ड रही हूँ कि जिन भी पर्सनालिटीज़ के साथ मैंने इंटरव्यू किए हैं, जब एक बार बात शुरू होती है तो फिर वो बातों से बात निकलती है और पता नहीं किसी तरह किससे टेल्स निकलते हैं, एंड वो बताते हैं ऐसा हो ऐसा हो, वो टाइम का पता ही नहीं चलता। And they also started enjoying, right? Telling एंड about मेरे themselves. साथ तो मैंने जिनके साथ इंटरव्यू किया है सब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हुई है, Okay. बहुत कैंडिड कन्वर्सेशंस हुई हैं, जो शायद मुझे नहीं लगता उन्होंने शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे इतना खुल के बोला होगा। बहुत लोगों ने काफ़ी दिल से बात की है, तो वो कहीं ना कहीं आई एम ब्लेस्ड। दिल से दिल तक का शो हो गया था आपका। करेक्ट। दैट्स ग्रेट मैन। Yeah. सो ऐसे जैसे आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए प्लस आपने और भी लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया कि आपके साथ कोई रूड हुआ हो, या यू नो ऑन स्क्रीन कुछ और है बट व्हेन इट कम्स टू कैमरा और व्हेन इट कम्स टू बिहाइंड द सीन देयर आर डिफरेंट पीपल, इज देयर एनी सिचुएशन कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? थोड़ा बहुत तो चेंज होता है ऑफ कोर्स स्क्रीन पे, बिकॉज एक तो वो रोल भी प्ले करते हैं, दूसरी चीज़ दैट्स देयर वर्क, कॉन्शियस अबाउट इमेज एज वेल। या थोड़ा चेंज होता है, बट बहुत ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं लगा। मुझे बहुत स्वीट पीपल मिले हैं, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, तो मेरा कभी ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ कि मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया, नेवर। सो इट वाज ऑल गुड। बट ये है कि मुझे उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और झांकने का मौका मिला है। बातचीत जब आप करते हैं तो प्रोफेशनल के अलावा जो पर्सनल चीज़ें हैं वो फिर आपको पता चलती है धीरे धीरे। एंड बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी कांटेक्ट है, बिकॉज जैसे मैं सेलेब मैनेजमेंट भी करती हूँ, कोऑर्डिनेट करती हूँ फॉर द वेरियस इवेंट्स, तो अगर कभी किसी को कहीं इनवाइट करना है कुछ है तो डेफिनेटली वो इन टच है। या मैम, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए और बहुत सारी नई नई कहानियाँ आपको जानने मिली, उनकी ऑन स्क्रीन लाइफ अलग है पर उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस आए हैं या कुछ इंटरेस्टिंग से किस्से रहते, राइट? सो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपको हमेशा से मेमोरेबल है आपके लिए और याद रहता होगा हमेशा। तो आप जस्ट आई वांट कि आप भी कुछ ऐसा कोई हमें किस्सा बताइए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, तो स्टार्ट करती है कॉमन मैन से, क्योंकि मुझे लगता है वो कॉमन मैन का जो एक किस्सा है, रिक्शा वाला का एक किस्सा है। Okay. तो वहाँ से जब हम शुरुआत करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको ये भी पहचानते हैं। तो वो स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। आई यूज्ड टू स्टे इन कांदीवली वेस्ट दैट टाइम, तो मैं वही रिक्शा, बाहर जो भी रिक्शा खड़े रहते थे बिल्डिंग के बाहर, वो रिक्शा में बैठ के और आई यूज्ड टू गो टू द स्टूडियो। सो हम तो पहचानते नहीं, जाके बैठे और पहुंच गए। तो एक दिन आई थिंक कुछ और चल रहा था मेरे माइंड में, कहाँ मैं बिजी थी कहाँ नहीं थी, मैं जाके रिक्शा पे बैठी एंड मैंने उसको बताया नहीं कि कहाँ जाना है। आई वॉज बिजी विद फ़ोन और ये वो उसने एग्जैक्टली मुझे स्टूडियो, दैट टाइम आई वॉज वर्किंग विद भारती इन गोरई, एग्जैक्टली उसने मुझे वो स्टूडियो के सामने जाके खड़ा कर दिया, रोक दिया। एंड आई वॉज लाइक मैंने शायद बताया नहीं आपको, आपको कैसे पता है? सर मैं, आप जब भी यहाँ से निकलते हो मैं आपको देखता हूँ, आप मोस्टली मेरा रिक्शा भी लेते हो, लेकिन आपको शायद याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि आप यहाँ पे वर्क करते हैं। Okay. तो दैट वाज एक्चुअली गुड थिंग वो सुनना किसी से, बिकॉज कितनी सारी पॉपुलेशन है, कितने सारे लोग आते जाते हैं, बट उसमें अगर स्पेशली मुंबई में और कितने सारे रिक्शे वाले या व्हीकल वाले जो भी हैं, टैक्सी वाले हैं, बट अगर कोई आपको चेहरे से याद रख रहा है और याद रख रहा है आप कहाँ से बैठ के किधर जाएंगे, उसको आपका रूटीन पता है, तो मुझे लगता है कि हाँ वो मेरे लिए बहुत एक ऐसा मोमेंट था कि हाँ भाई कुछ तो अचीव किया है अभी तक। हालांकि एक लंबी जर्नी है, बट हाँ कुछ तो है, कुछ तो अपना नाम बनाया है कि लोग पहचानने लगे हैं। एंड दैट गुड थिंग, लाइक जैसे आपने बोला रिक्शे वाले को, इट वाज अ गुड मोमेंट फॉर यू, बट आई बिलीव जो सबसे ज़्यादा लोग सुनते हैं वो रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, फॉर ट्रैवलर लाइक रेडियो जॉकी तो उनके लिए है कि वो तो है ही हमारे साथ पूरी जर्नी में। दे लिसन टू द रेडियो एज वेल एंड दे लिसन टू द स्टोरीज एज वेल, जो पॉडकास्ट पे है। दिस ऑल्सो हैपेंड विद अनदर रिक्शा वाला व्हेन आई वाज गोइंग टू द मलाड स्टेशन। वो टाइम पे ही हैज ओपन्ड दैट ऐप जिस पे मेरी स्टोरीज आती है एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ही वाज लिसनिंग टू दैट स्टोरी ओनली। ओके। सो जब मैं बैठी मैंने देखा कि अरे अच्छा, मैंने पूछा भैया आप ये सुनते हो? हाँ ये बहुत अच्छी लगती है स्टोरीज, बहुत पसंद है मेरे को, ये सुनता हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा आपको पता है ये जो आवाज़ है मेरी है? तो लाइक अच्छा आप हो क्या? अच्छा इसमें आपकी स्टोरीज आती है, और कौन कौन सी है? मैं कहा ये नाम से सर्च करना आपको सारी मिलेगी। तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, वो एक कॉमन मैन भी सुन रहा है, आप हर जेनरे के लिए स्टोरीज बना रहे हो।
उसके अलावा एक और किस्सा है जो मेरे लिए एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, तो जूही चावला का इंटरव्यू मैंने लिया था, तो उनके घर पे जाके हमने शूट किया था। दैट टाइम अब क्वेश्चंस जनरली क्या होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में होते हैं, बट आई मेक श्योर कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ तो आई डू फुल रिसर्च अबाउट दैट, कहाँ से, मतलब कुछ डिफरेंट। अदरवाइज आपने कैसे शुरू किया, कैसा लगा, ये वो तो सब लोग सुनते हैं, तो मुझे था रिसर्च करके जाऊँ, वो मैं अपने हर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपने व्हेन यू वर इन 8th स्टैंडर्ड और समथिंग, आपने एक प्ले किया था स्कूल में, कौन सा कैरेक्टर किया था, आपको याद है उस प्ले के बारे में? शी वॉज नॉट नोइंग इट, उनको याद ही नहीं था। फिर हाँ मैं करती तो थी लेकिन मुझे याद नहीं है कौन सा था। मैंने कहा आपने ये कैरेक्टर किया था, उसका नाम मालती था। तो मैंने वो बताया एंड शी वॉज लाइक कहाँ से लेके आए हो ये किधर से निकाल के लेके आए हो सवाल। सो शी कॉम्प्लीमेंटेड मी कि आपने बड़ा अच्छा रिसर्च किया, जो मुझे भी याद नहीं है शायद, वो पता नहीं कहाँ से रिसर्च करके आस्क्ड मी, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। That's great, मैम। मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे मेमोरीज हैं that will be always, yeah. तो जैसे फ़ैन मोमेंट की बात चल रही है, एक और किस्सा मुझे याद आता है। आरजे, बीइंग आरजे मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, उसमें से ये हुआ है कि मैं किसी से भी जाके मिल सकती हूँ क्योंकि आपको एक स्टेटस मिल जाता है, बट उसके अलावा आपका पैशन भी होना चाहिए मिलने का अपने फेवरेट सेलेब्स से, तो मेरी किस्मत अच्छी रही उसके अंदर। तो अनु कपूर सर, जिनको पूरी दुनिया पसंद करती है, अंताक्षरी फेम, जिनको बचपन से टीवी पे देखा है और चाहा था कि उनको या तो मिल लें या फ़ोटो खिंचवा लें या एक बार देख लें, क्योंकि मैं भी एंकरिंग करती थी, तो कहीं ना कहीं उनका एक इंस्पिरेशन आता है, उनको देख के आप सीखते हो कि हाँ ऐसा अच्छा लग रहा है, फॉलो करते हो उनको। तो उनसे मिलना चाहा था और वो ही कॉन्टैक्ट्स निकालने के चक्कर में, आई एम वेरी गुड एट दैट, कॉन्टैक्ट्स निकालने के चक्कर में, तो किसी से मुलाकात हुई और मैंने उनका नंबर लिया कि मुझे जस्ट इनसे मिलना है एक बार। और चीज़ें कुछ ऐसी वर्कआउट हुई कि मैं उनके साथ काम किया मैंने 5-6 महीने। लाइक उनको एक राइटर की ज़रूरत थी अपनी टीम में, एक न्यू राइटर की, एंड कोई एक स्टोरी लिख रहे थे जो जहाँ पर एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव भी ज़रूरी था, तो उनको एक फ़ीमेल राइटर की ज़रूरत थी। एंड मैं पहुँच गई उनके ऑफिस, उन्होंने इनवाइट किया, पहले बात किया फ़ोन वगैरह पे, एंड देन इनवाइट किया ऑफिस में, देन ही सेड ओके यू जॉइन। तो मैंने ज्वाइन किया उनके साथ और 5-6 महीने हमने वो प्रोजेक्ट पे काम किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते थे हमारे राइटर्स का सर के साथ, तो जिनके साथ सिर्फ मिलना था, फ़ोटो खिंचवाना था, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वो कैसे हैं पर्सनली वो जानने का मौका मिला, उनकी छोटी छोटी बातें जानने का मौका मिला, एंड एज अ पर्सन वो स्क्रीन के अलावा कैसे हैं, इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी फुल ऑफ एनर्जी द पर्सन ही इज़। लाइक उनको बोल सकते हैं कि हाँ वो एनसाइक्लोपीडिया है। उनको कुछ जैसे मैं किससे सुना रही हूँ, उनके दिमाग में जितने आप बॉलीवुड के जितने लोग हैं सबके छोटे 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 किस्से हैं। तो हम लोग जब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते थे तो बीच बीच में कुछ ना कुछ किस्सा निकल के आ जाता था। अगर धर्मेंद्र सर की बात चल रही है तो अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। अमिताभ सर की बात चल रही है, ऐसा हुआ था, ऐसा होता। तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली उनसे। सो लाइक यू नो, हम भी अगर उनकी बात करें, बचपन से हम जो शोज़ देख के आए, राइट, सारेगामापा, अंताक्षरी, उनका एंकरिंग स्टाइल ही बहुत अलग था। यू नो, अगर उनके साथ कोई और भी एंकर, बट ही इज़ लाइक यू नो स्टेज स्टील करने वाला, उनके अंदर एक टैलेंट है। सो यू नो ओवर पावर कर लेते हैं, स्पॉन्टेनियस, या एकदम फुल ऑन एनर्जेटिक ही इज, सो एवरीवन लव्स हिम, एवरीवन लाइक्स टू वॉच हिम। या वेरी थॉटफुल। क्योंकि हम जब बात करते हैं, हमारा तो मेरे जो बाकी राइटर मेट्स थे वो भी यही कहते थे, जैसे यूज्ड टू गिव अस सम वर्क कि कल ये जो सीन हमने डिस्कस किया इसको लिख के लेके आना, विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो जब हम उसको लिख के लेके जाते थे, नेक्स्ट डे वो कुछ और ही हमारी इमेजिनेशन यहाँ तक कि उनकी इमेजिनेशन यहाँ से शुरू होती है। इज लाइक नहीं ऐसे से नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, तो पूरा देयर लाइक महल धाराशाही हो जाता है हम लोगों का सोचने का। ही इज सो स्पॉन्टेनियस एंड फुल ऑफ एनर्जी। सो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ओनली एंड मीटिंग पीपल। कितने सारे लोगों से मिले हैं वो अभी तक, तो वो ही मेरा भी रहा है। इवन आई लाइक मीटिंग पीपल, more exposure with celebs, उनकी लाइफ with a common man as well, not the celebs, but अगर कहीं सोशल गैदरिंग हो रही है, स्टिल आई लव टू मीट पीपल, आई लव टू नो व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। सो वो जो एक सोशल इंटरेक्शन होता है आपका, वो आपको काफ़ी हेल्प करता है ग्रूम करने में, और जिस भी फील्ड में आप कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स एज यू से, वो आपका बढ़ता ही है, अच्छा ही होता है।
दैट्स ग्रेट मैम, लाइक आपने इतने अच्छे अच्छे किस्से हमसे शेयर किए. सो मैम आई हैव वन मोर क्वेश्चन, लाइक यू नो जैसे आपने बोला आपका पैशन था, यू आर डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो, बट अल्टीमेटली इट टुक यू नहीं यार मुझे तो आरजे बनना है या मुझे मेरे ड्रीम को ही यू नो उस पर काम करना है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं यू नो, समटाइम्स इट हैपन्स कि वो इनबिल्ड उनके अंदर वो चीज़ें रहती, समटाइम्स इट हैपन्स कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं, यू नो दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू इन मार्केट, वी शुड ऑल्सो ट्राई, फैसिनेटिंग लग रहा है राइट. तो अगर किसी को सच में यू नो अच्छे लेवल पे अपना करियर स्टार्ट करना है वीजे बन के या आरजे बन के, सो व्हाट डू यू थिंक उनके लिए क्या बेस्ट यू नो क्वालिटीज़ रिक्वायर हैं, या फिर उनको कभी कभी सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं राइट. जैसे आपने बोला हम नॉर्मल जॉब करते हैं सो वी गेट सैलरी, बट समटाइम्स इट हैपन्स व्हेन यू आरजे और वीजे आपको यू नो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम मिलेगा, उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे. सो व्हाट योर ओपिनियन ऑन दिस? फर्स्टली एक ग्रेजुएशन करना इज़ द बेसिक क्वालिफिकेशन, वो आपको करनी ही है. उसके अलावा अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में आना, चाहे वो आरजेइंग हो, वॉइस ओवर हो, वीजेइंग हो, कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में, आपको एक प्लान बी लेना बहुत ज़रूरी है साथ में. ऐसा नहीं होता है कि आप अपनी गारंटीड जॉब है कि उसको छोड़ के आप इसके अंदर आ जाएं. अगर आप उसके अंदर एक्सेल करते हैं बहुत अच्छी बात है, एक लेवल पे जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोविड ने आई थिंक हम लोग को सिखाई दिया है कि चाहे क्रिएटिव फील्ड हो चाहे कोई दूसरा फील्ड हो, हमको एक प्लान भी लेके चलना ही होता है. एंड सेकेंडली आप क्रिएटिविटी, अपना जो क्रिएटिविटी है उसको किस तरीके से अलग अलग फील्ड में यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्टली ग्रेजुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली क्रिएटिव और पैशन वो आप में होना चाहिए. क्रिएटिविटी को कैसे अच्छी तरह से दिखाना है, कैसे और सीखना है, सीखने की ललक जो होती है कि ये भी सीखना है. एंड गोइंग विद द फ्लो, जो आज का टाइम चल रहा है, जैसे दैट टाइम इंस्टा भी बहुत है, इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, इंस्टा के बाद और भी चीज़ें, अभी शॉर्ट्स आ गए हैं, रील्स आ गई हैं. मतलब पहले जहाँ यूट्यूब होता था या दूसरे इंटरव्यूज, जूम मीटिंग होती थी कोविड के दौरान, वहाँ पर अभी शॉर्ट्स और रील्स का ज़माना है. इस पे इंटरव्यूज़ होते हैं, इस पे आप अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर कर सकते हो. तो डेफिनेटली स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट. एक सैलरीड या आपका एक पक्का जॉब जहाँ से आपको एक आप अर्निंग हो रही है, फिक्स इनकम, वो ज़रूरी है. उसके अलावा आप क्रिएटिवली कुछ भी करो, किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हो. जब आपको लगे कि हाँ ये फील्ड में मैं एक ऊंचाई पे पहुंच चुका हूँ, देन डेफिनेटली आप देख सकते हो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है. बट इसके अंदर ये भी है, जैसे इन माई केस आई स्टार्टेड विद आरजेइंग, देन आई गेट इनटू फील्ड ऑफ वॉइस ओवर एंड डबिंग. तो मैंने आरजेइंग छोड़ी नहीं है, मेरी आरजे चल रही है. द ओनली थिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई है. अभी मैं 15 डेज में एक शो करती हूँ या 1 वीक में एक शो करती हूँ, एंड आई गिव प्रायोरिटी टू माई वॉइस ओवर एंड डबिंग थिंग. देन कम्स द कोऑर्डिनेशन थिंग. देन अलॉन्ग विद दैट आई स्टार्टेड द प्रोडक्शन कंपनी. तो अभी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं. तो ऐसे ही जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, पहली बात उसकी एक फिक्स इनकम होनी चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है. सेकेंड, कोर्सेज और पॉलिशिंग की जहाँ तक बात है, आप में वो 80% कैलिबर होना चाहिए, इनबिल्ड होना चाहिए क्रिएटिविटी का. तब जाकर आपको 20% कोई पॉलिश कर सकता है और एक प्लेटफॉर्म दे सकता है. वो बहुत ज़रूरी है. तो दोनों चीज़ें आपको रखनी है. थर्डली, अभी इतना सोशल मीडिया का ज़माना है, इतना एक्सपोजर है, तो आप को अगर एक प्लेटफॉर्म अगर कोई नहीं दे रहा है, आप खुद ही अपना प्लेटफॉर्म बना लेते हो. तो आप उसी में पॉपुलैरिटी मिल जाती है आपको, तो बहुत मार्केटिंग अच्छी खासी हो जाती है. इट्स लाइक अ सेल्फ मार्केटिंग वेयर नो एजेंसीज रिक्वायर्ड. एंड अभी की जनरेशन तो दे आर वेरी इवॉल्व्ड, दे आर वेरी प्रो इन एवरीथिंग, दे नो व्हाट टू डू. अभी मैं देख रही हूँ कॉलेज से निकले नहीं होते. हम लोग जब कॉलेज से निकलते हैं तो हम सोचते हैं, या फाइनल ईयर में सोचते हैं कि हमको यहाँ जॉब करनी है, यहाँ अप्लाई करना है, या चलो वो सिटी में चलेंगे तो अच्छा रहेगा. अभी तो दे आर डूइंग फर्स्ट ईयर और उसके अंदर ही दे आर एडिशनली डूइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, दे आर लर्निंग एडिटिंग, दे आर डूइंग कुछ चीज़ें कर रहे हैं. तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स. क्योंकि अभी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरी जो प्रोडक्शन टीम है, दे आर यंग पीपल. तो दे आर लाइक जॉब भी कर रहे हैं, रात को जाग कर 2-3 बजे तक ये भी कर रहे हैं. एंड बाकी अब फिर अपना चैनल भी खोलना है, फिर कुछ नया स्टार्टअप भी शुरू करना है. तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए along with the one passion. So ma'am, I think it's not easy, I would say, because here it will be require a multitasking person जिसका thought process भी वैसे चले, right? कि अगर मुझे एक आरजे बनना है या इस फील्ड में जाना है, then I should have some stability also, कि मुझे problem ना आए, right? Yes. So I think that and too requires them, because I don't think so it will be easy for a person to make career in this, right? Correct. And being RJ is not about just saying in front of mic. It's like lots of technical
थिंग्स वो आपको सिखाई जाती है, बट थिंग आप में वो होनी चाहिए। स्क्रिप्टिंग आपको आनी चाहिए, टेक्निकल चीज़ों को, मॉनिटर को, कंप्यूटर को कैसे, माइक को कैसे हैंडल करना है वो आपको आना चाहिए। नॉइस आ रही है उसको कैसे आपको, समवट ऑफ एडिटिंग आपको आना चाहिए, टोन चेंज करना आना चाहिए, हाँ, मॉड्यूलेशन आना चाहिए, वो हम लोग वर्कशॉप्स में सिखाते हैं। मॉड्यूलेशन आना चाहिए, कुछ चीज़ें आप में होती है वो आपको पॉलिश करनी होती है। अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कमर्शियल कर रहे हैं, फिर टॉक अबाउट वॉइस ओवर थिंग, कमर्शियल कर रहे हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें होती है। जैसे कमर्शियल अगर एड बिग बाजार का है तो आपको कैसे बोलना है, तनिष्क का है तो आप कैसे बोलेंगे, वर्लपूल का है तो आप कैसे बोलेंगे, तो वो एक ही टोन सब जगह नहीं जाती है। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो यू शुड बी एबल टू अडेप्ट टू व्हाट द चेंज इज कमिंग। अगर आप एक ही अपना स्टाइल लेके बैठ जाएंगे, यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक स्टाइल है। अब वो स्टाइल अगर 5-6 साल तक लोग सुनेंगे, लेकिन वो स्टाइल फिर कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाता है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम, अदरवाइज वो होता कि वो एक शो आता था, वो था हो जाता है। और हाँ, ऑफ कोर्स उसकी फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन आप फिर टाइम के साथ नहीं चल पाते, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, वीडियो आर्टिस्ट, रील वाले सब उठ के आएंगे, तो फिर आपको कौन पूछेगा। They are like the biggest competitors, I believe, nowadays, these influencers, and yes, definitely. So मैम, जैसे आपने बताया कि वॉइसिंग भी एक पार्ट होता है, राइट? तो आपने ऐसे बोला कि एक वॉइस मॉड्यूलेशन भी होता है, जहाँ पे हर एड्स, हर ब्रांड्स के हिसाब से आपको मॉड्यूलेशन चेंज करना पड़ता है, राइट? सो आई एम वेरी एक्साइटेड इफ यू कैन से समथिंग, यू नो, आप कैसे उसको मॉड्यूल को चेंज करती हो? श्योर। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर द स्टोरी टेलिंग फर्स्ट। जब हम स्टोरीज़ करते हैं, ऑडियो स्टोरीज़ करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की स्टोरीज आती हैं। दैट कुड बी रोमांटिक, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर, कुछ भी हो सकता, कॉमेडी भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास जैसे एक लाइन मैं आपको बताती हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको पढ़ें, जस्ट रीड करें, लाइक रात का घना अंधेरा, पत्तियों की सरसराहट, गहरे नीले आसमान से झांकता चांद, और आसपास हवा में घुली रजनीगंधा की महक, ऐसे में दो लोगों के कदमों की आवाज़। सो दिस इज अ सिंपल रीडिंग। सो अगर इसको अपने को रोमांटिक बनाना है, तो एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऑल्सो प्लेज अ रोल। उसके अलावा आप, मैं रोमांस का पहले बताती हूँ आपको। रात का घना अंधेरा, पत्तियों की सरसराहट, गहरे नीले आसमान से झांका चांद, और आसपास हवा में घुली रजनीगंधा की महक, ऐसे में दो लोगों के कदमों की आवाज़। So this is the romance. Amazing, man. That's really amazing. So this is the romance. अगर इसी को आपको हॉरर बना देना था, तो अब हॉरर में हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो पीछे कुत्तों की आवाज़ भी आएगी, उल्लू की भी आएगी, और पत्तियों की जब आप चल रहे हो तो वो वैसी वाली आएगी। तो वो सोच के आप अगर सुनोगे इसको, रात का घना अंधेरा, पत्तियों की सरसराहट, गहरे नीले आसमान से झांकता चांद, और आसपास हवा में घुली रजनीगंधा की महक, ऐसे में दो लोगों के कदमों की आवाज़। That's great. Now this is called voice modulation. Yeah, that was amazing. So इस तरह से आप हॉरर और वो कर देते हैं। इसमें अगर आप और थोड़ा कांपना वापना और ऐसा चीखना चिल्लाना, बैकग्राउंड वॉइस ऑल्सो, तो वो आपका वैसे बन जाता है। एंड अगर हम एड्स की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि तनिष्क का ऐड होता है, दूसरा ऐड होता है, तो वी हैव सॉफ्ट एड्स एंड हार्ड ऐड करके कुछ होता है, डिफरेंट कैटेगरीज होती है, सोफिस्टिकेटेड ऐड एंड रॉ ऐड। तो उसमें अगर आप बिग बाजार की बात कर रहे हो या फिर कुछ बेच रहे हो, कुछ मुफ्त कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो अलग तरह का आता है। तो लाइक ये है ऑफर के बारे में। तो इट्स लाइक हमको टाइमिंग मिलता है 15 सेकंड्स में आपको बोलना है, तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको बताती हूँ। ये शेयर आपको दे सकता है बम्पर रिटर्न्स। शेयर का नाम है विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी कॉफी एक्सपोर्टिंग में से एक है। सो दिस इज लाइक दैट। और यही अगर आप तनिष्क बोलोगे तो डेफिनेटली हीरा है सदा के लिए, यू कांट से दैट, हीरा है सदा के लिए। या सो दिस इज द मॉड्यूलेशन इन दैट। दैट्स ग्रेट। इसमें अगर बच्चों की हम लोग करते हैं, अगर मम्मी बोलेगी तो, अरे गोलू तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है, तुम इस झूले पर नहीं चढ़ सकते। गोलू बोले, अगर कोई बच्चा बोल रहा है,
अरे गोलू, तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है, तुम इस झूले पे नहीं चढ़ सकते, हम तुम्हें साथ में नहीं खिलाएंगे। तो वैसे Yeah. करके बोल रहे हैं। फिर अगर बूढ़ी ग्रैनी बोलेगी तो अरे छोटू, तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है, तुम इस झूले पे मत चढ़ो, गिर जाओगे। Wow, ma'am, it was amazing. सो ये सब चीज़ें हम लोग वर्कशॉप में सिखाते हैं। Okay. क्योंकि देखो, आवाज़ गॉड गिफ्टेड है, Yes. उसको आप चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आपकी आवाज़ में क्या काबिलियत है वो पहचानना। एंड अगर आपको ज़रा भी लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं अगर बोलती हूँ तो लोग तारीफ़ करते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। Yes. जब आप स्टार्टिंग में आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है तो आप बड़ा अच्छी सी आवाज़ के साथ वो रीड करते हैं, ऐसा था वैसा था, वहाँ से जा रहे थे, यहाँ से जा रहे थे। लेकिन आपको जब कोई स्टोरी, अगर कोई सुनने वाला आपको चाहिए, आपको स्टोरी के फॉर्म में करना है, तो कहाँ पे वो Pause waves लेना create है, करनी yes. है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे उसको हायर रेंज देनी है, कहाँ पे लोअर रेंज देनी है, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। एंड यूट्यूब की स्टोरीज आपने सुनी होगी, तो कई बार वो फ्लैट, अगर एक ही फ्लैट में बोले चले जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आता। वही अगर कभी गोलू बोल रहा है, कभी मोलू बोल रहा है, कभी चिंटू बोल रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपनी वॉइस चेंज करते हो, तो बच्चों को अट्रैक्टिव लगता है। So मैम, आप ये ऐसे बचपन से ऐसे, या फिर आपको एक टाइम के बाद ये शौक आया था? स्कूल एंड कॉलेज से आई यूज्ड टू बी वेरी शाय इन स्कूल। मतलब मेरी आवाज़ बहुत कम लोग सुनते थे, टीचर्स बोलती थी तो बोलती नहीं है लेकिन आई वाज हैविंग दिस स्मॉल सर्कल। एंड देन कॉलेज में जब मैं आई हूँ तब मैंने क्योंकि यूथ फेस्टिवल्स हैं या कहीं कंपटीशन है, तो आई यूज्ड टू राइट ओनली, बट देन माय फ्रेंड सेड तुम बोलती अच्छा हो, साथ में बोलो। वहाँ से कहीं ना कहीं स्टेज फेयर हटा एंड मैं स्टेज पे आना शुरू हुई। सो देन तो अभी ये है कि अगर अनु है तो स्टेज को अनु नहीं संभालना है, वो वाला सीन था। तो कहीं ना कहीं वहाँ से बोलना, एक्सप्रेस करना, फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो लिखना मेरा कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से चल रहा था, राइटिंग। बट एग्जीक्यूशन बाद में हुआ? एग्जीक्यूशन बाद में। बट डेफिनेटली आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर करके सुनती थी, सुनवाती थी, वो डेफिनेटली था शुरू से। That's great, मैम। सो लाइक आज का पॉडकास्ट रियली गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जब लोग सुनेंगे, और ये हमारे चैनल पे आएगा डेफिनेटली, क्योंकि हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली, राइट? लाइक अपार्ट फ्रॉम, जैसे कि हम बात करते पेरेंट्स, मेजरली दे फोकस कि भाई तुम पढ़ाई वाली इंडस्ट्री में जाओ, यू नो, हैव अ जॉब। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो क्रिएटिव उसमें जाने देते, बट आई एम श्योर अब आज वो सुनेंगे, उनके पेरेंट्स भी देखेंगे जब, तो आई एम श्योर कि वो भी उनको इनकरेज करेंगे to go in such, you know, creative field, but with balanced life. With the balance, Yeah. definitely. Because हर किसी को एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए। वो सिक्योर फ्यूचर जो आप चीज़ कर रहे हैं उससे, अगर जिससे आप पसंद कर रहे हैं, लव कर रहे हैं जिस प्रोफेशन को, उससे अगर आता है तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है। The only thing is कि आपको जोश के साथ होश भी नहीं गंवाना है, आपको वो भी लेके चलना है कि आगे अगर ये नहीं तो क्या। Yes. एक प्लान भी लेके ज़रूर चलना है। So thank you so much, ma'am.